all many scientists and many people at present are talking about this term sustainable. So what is the meaning of sustainable, and whether it is a new term or old term? So sustainable means the definition is that, one of the definition is that meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their needs. So this is the meaning of sustainable. सम्यक विकास, हिंदी में, in Hindi the equivalent, the analogous equivalent term is samyak. And this sustainable development may be new thing for Western world, for Europe, for America, but this is a very old concept for us. Like this sloka I have taken from Rig Veda. ये जो श्लोक है I have taken from Rig Veda. 5,000 years back, the slok was written or given, not written, was cited by our Rishi Muni. And the meaning, this is in Sanskrit, the meaning is that समग्र पृथ्वी संपूर्ण परिवेश परिशुद्ध रहे, शुद्ध रहे, नदी पर्वत वन उपवन सब स्वच्छ रहे, ग्राम नगर सबको विस्तृत और उत्तम परिसर प्राप्त हो, तभी जीवन का सम्यक विकास हो सके. So this, for us, this is not new concept. हम लोग इसको भूल गए हैं, we forgot this concept. But this concept is inherent in our culture, inherent in our lifestyle. Was now it is still existing, but slowly deterioration is taking place. So it was inherent in our culture, it was inherent in our behavior, it was inherent in our dharma. So sustainable is not a new word for us. For other part of world, for Europe, America, it may be a new word. So we all are talking about sustainable development now. Sustainable क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत से, there are so many sloka in the Rig Veda. The overall outcome of that sloka is that any work against the nature is adharma, not dharma. धर्म का definition है प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य है वह अधर्म के श्रेणी में आता है. तो many में अब सस्टेनेबल की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? द सस्टेनेबल की बात इसलिए कर रहे हैं कि विद इन 200 can say 100 years, last 100 to 100 years, we have science and technology enormous. We have seen enormous development in science and technology. But along with that development, there are a lot of deterioration in the nature. Most of the rivers are polluted. Our air is polluted. Our whole earth is polluted. Lot of challenges we are facing from environment point of view. Lot of challenges we are. Why? What is the reason? What is? Because the development is not sustainable. Development is not sustainable. Why I told you that sustainability was in our culture. Sustainable हमारे लिए नया वर्ड नहीं है, हमारे में inherent था, हमारे कल्चर में inherent था. हमारे कल्चर में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है. हमारे कल्चर में रिसाइकलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर 20-25 years back in villages, my grandma, हमारी जो दादी थी, we used to wear cotton cloths. और आफ्टर यूजिंग, उसका लाइफ खत्म हो जाता था, तो कॉटन क्लॉथ वाज कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, मेनी अदर, लाइक इट वाज कन्वर्टेड इनटू, you can say, mattresses. Very good example. The cotton cloth, very durable mattresses, cotton cloth was converted into very durable mattresses. So there was already concept of recycling. Recycling is a part of sustainability. कोई भी चीज था उसको, अभी भी हमारे कॉन्सेप्ट में है. वी आर नॉट लाइक वेस्टर्न पीपल. आपके यहाँ पॉलीथीन आता है तो आप सोचते हैं कि उसको रख लें और उसको फिर से यूज करें. दो बात, तो ये अभी भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे वी आर फॉरगेटिंग. वी आर आवर हैबिट इज चेंजिंग स्लोली. तो सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is not a new concept. It is very old concept for us. 5,000 years back, it was already in our sloka, in our culture, in our dharma. So all are talking about sustainable development, sustainable energy, waste management. Lot of people. तो ये हमारे लिए कोई पुराना नया concept नहीं है, हमारे लिए पुराना concept है.
अब देखिए ये कैसे, देखिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट फॉर आवर कंफर्ट, just for our comfort, just for increasing our lifestyle, without knowing the future impact, we have exploiting the natural resources. In last 200 years, we have exploited the natural resources. जो चीज हम लोगों ने, means if you take the origin of Homo sapiens or sapiens or origin, that is million years back. लेकिन मिलियन ईयर्स में 200 साल में हम लोगों ने जितना डैमेज किया अर्थ को, उतना हम लोगों ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख साल में भी नहीं किया। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यूजिंग कोल एज एनर्जी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यूजिंग कोल एज एन एनर्जी, कोल concept of coal is not, means even thousands years back there was evidence that people were using coal, but in very small quantity. कोल का जो एविडेंस है बहुत पुराना है, लेकिन लास्ट के 200 साल में आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट, enormous use of coal was taken place without knowing its environmental impact. उस समय जब हम लोगों ने कोल यूज करना शुरू किया तो बहुत अच्छा था, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल इज ए कन्वीनियंट सोर्स एज कंपेयर टू बायोफ्यूल और बायोमास, इट्स वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने यूज जब शुरू किया तो हम लोग पता नहीं था कि इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। अब जब आप कोल यूज करते तो करते क्या है, द कार्बन inside the earth as solid. Coal is basically a form of carbon and it present inside the earth. We convert that coal, the carbon inside the earth, we transfer that carbon into atmosphere in the form of gas with many other toxic compounds including heavy metals. The carbon was present inside the earth, coal, carbon, a form of carbon, you converted into gaseous form. Now it can't stay inside the earth, it will be in the atmosphere, upper side the earth. Or what will be the consequences? Global warming. The most important consequences is global warming. Inside the earth जो आपका कोल था वो हीट सिंक की तरह काम करता था. It was acting as heat sinks. It was absorbing the heat और जो एटमॉस्फेयर को वो कूल करता था. It was working like coolant for atmosphere. It was just like a heat sink. Once you converted that coal into carbon dioxide, that creating global warming. How it is creating global warming? It is trapping the heat. It is trapping the solar energy and increasing the temperature of atmosphere. So just you converted the form of carbon from solid to gaseous. Lot of consequences you are facing. Consequences: melting of glacier, increasing the sea level, change in rain pattern, many consequences. Change in we are monsoon oriented. We have monsoon oriented agriculture. Due to global warming, the monsoon means pattern of monsoon will change. Our agriculture pattern will change. तो लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो सोच नहीं सकते हम लोग. हो सकता है अभी तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन 50 years आफ्टर 50 years अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो आवर एग्जिस्टेंस विल बी इन मींस क्वेश्चनेबल कि 2050 या 2100 तक हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे. इट्स अ क्वेश्चनेबल. Along with CO2, we have produced enormous amount of many toxic gases. SOx, SO2, carbon monoxide, NOx. They are also creating a lot of problems. Along with health impact. Health impact is one problem. Also creating a lot of other problems. Acid rain, many problems they are creating. ये तो पहले पता चल गया. ये सब चीजें आज से 40 years back this was known to us. अभी 20 years back, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 20 years back एक चीज और आ गया इसमें जुड़ गया. Around 20 years, black carbon. I have done lot of research on black carbon along with in collaboration with ISRO, VSSC, विक्रम साराभाई से. तो we have black carbon का हमारे पास डेटा ही नहीं था.
अब क्या होता था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था वो काफी ज्यादा हो रहा था. If we include the impact of CO2, including the impact of CO2, we considered all CO2, but impact of global warming was far larger. Impact of glacier melting was far larger. तो हम लोग पता नहीं था कि वाह, what is the reason? So finally the lot of research was done, and one factor was found: black carbon. Black carbon is small carbonious particle. If you burn the coal, if you burn the biomass, so in atmosphere, a small solid particle emit और they stay in the atmosphere for very long time. जो solid particle होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, micron size के. You can say, I think many people know PM1, 1 micron or below 1 micron. They stay in the atmosphere for very long time with, and they can easily flow with wind. तो ब्लैक कार्बन आ गया. अब ब्लैक कार्बन क्या करता है? ब्लैक कार्बन क्या है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. इट्स अ हीटेड पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल बट हीटेड पार्टिकल. इट कैन एब्जॉर्ब द लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द सन डायरेक्टली. अब ये क्या हुआ, ये क्या किया, ये आपका जैसे आप विंड है, विंड के साथ बहते बहते, विंड के साथ फ्लो करते करते जाके ग्लेशियर पे, ग्लेशियर जैसे ब्लैक कार्बन आपका विंड के साथ फ्लो हो रहा है, और समझ लीजिए 6 किलोमीटर के ऊपर ब्लैक कार्बन की लेयर है. अब ब्लैक कार्बन जाके ग्लेशियर्स पे बैठ गया, तब क्या हो गया? इनॉर्मस इंक्रीज इन मेल्टिंग रेट ऑफ ग्लेशियर वी आर फेसिंग इन द हिमालय रीजन वेरी. और उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, नदियां सूख जाएंगी, और फिर जब जब आपका बाढ़ आएगा, ज्यादा पानी बहेगा, बाढ़ आएगा और नदियां सूख जाएंगी. बाढ़ भी बहुत आ रहा है और सूख भी रही है. तो इसके बाद और ये क्या करता है? Cloud contamination. It is mixing with cloud. This black carbon small particle, heated particle, mixing with cloud and affecting the nucleation phenomena of the cloud. Cloud में जो rain formation phenomena होता है, that is called nucleation. Due to nucleation, इसको impact दे रहा है. इसमें क्या हो रहा है? आपका जो rain हो रहा है, बारिश, the rain pattern, there is change in rain pattern. Either we are getting lot of rain during very small time interval, or we are getting no rain. But the ideal condition is that you should get slow rain in appropriate season. That is the best situation. You should get the rain slowly in appropriate season. लेकिन अब आप क्या एकाएक बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई. Lot of rain is there in the small duration. उसको that is also known as bursting of cloud. बादल फट गया, बाढ़ आ गई बहुत. तो change in rain pattern, the melting of glaciers, change in season. So these all things we are facing. Slowly we are facing this all impact due to only burning of coal, using of coal. जब हमने शुरू किया था हमको कुछ नहीं पता था. फिर इसके बाद यहाँ तक आया. इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई. अभी I am getting lot of call from the Coal India and thermal power stations. So what is the problem? Fly ash. If you burn the coal, the residue is known as fly ash. Fly ash, lot of mountains of fly ash you will find near the thermal power stations. Mountains of fly ash, बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखेंगे. अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? Fly ash contain, most of the Indian coal are inferior quality. So fly ash contain lot of harmful components, including heavy metals. Contain arsenic, contain cadmium, contain mercury, lot of heavy metals are there. अब वो fly ash आपने छोड़ दिया, जब बारिश होती है in the rainy season, these heavy metal percolate in the earth through the earth's surface. They are contaminating the ground aquifers, water aquifers inside the ground. जो पानी के स्रोत हैं, water aquifers है, उसको contaminate कर रहे हैं. Another problem we are facing. Fly ash जब wind चल रहा है तो atmosphere में mix होके वो आपको pollution problem दे रहा है, particulate pollution. So again one more challenge, one more problem we are facing. ये देखिए एक स्टोरी है, रिहंद डैम. This dam is located in the Sonbhadra area of UP and then MP border. Contamination of water in the Rihand dam. अब रिहंद डैम का वाटर वैसे बहुत ही शुद्ध वाटर है वहाँ का, प्योर वाटर. The rivers in that side is very pure, though no contamination. लेकिन रिहंद डैम का पानी कंटामिनेटेड हो गया. कैसे कंटामिनेटेड हो गया? जब हम वहाँ पे around the Rihand dam, lot of thermal power stations are there.
The installed capacity is more than 25,000 megawatt. Very lot of thermal power station. So they are producing lot of gaseous pollutant. अब जो रिहन डैम है उसका कैचमेंट एरिया इज वेरी लार्ज और उसमें वो जो गैसेस पोल्यूटेंट है वो एब्जॉर्ब होते हैं वाटर है सम एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, सो दे एब्जॉर्ब द गैसेस पोल्यूटेंट. अब उसमें वाटर में वो गैसेस पोल्यूटेंट घुस गया, हैवी मेटल आ गया और भी बहुत सी चीजें आ गई और उससे क्या हुआ वहां से फिर वो कहाँ पहुंचा? फ्रॉम वाटर it went to the food route, it went to the tree, it went to the plants, and then from plants it went to the animals, milk of the cow, from milk it went to the human body. आपके बच्चों में कैंसर हो गया, वो हैवी मेटल कोयले से निकल के पानी में गया, पानी से निकल के पेड़ों में गया, पेड़ों से निकल के गाय के दूध में गया, गाय के दूध से निकल के बच्चे में पहुंच गया और क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. तो ये सब चीजें देखिए, इतना एक कोयला जलाने से उसका इम्पैक्ट जब हम लोगों ने शुरू किया, तो हमको कुछ नहीं पता था. वी थॉट दैट वी गॉट ए वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी. बर्न करो खूब, आप बढ़िया इससे इंजन चलाओ. जेम्स वाट ने इंजन किया, अब आपने क्या किया कि उसको यूज करना शुरू किया. तो इसमें अब इसके इतने ढेर सारे इम्पैक्ट अभी तक आ चुके हैं. In future, we may face many other impacts just by burning of coal. One thing ऐसा burning हमने coal ही नहीं बना, और भी बहुत सी चीजें की. I'm just telling one story. तो अब ये चीज समझना पड़ेगा हमें कि all components of nature have some role. coal जो अंदर था अर्थ के, उसका कोई रोल होगा, ये निश्चित है. उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको कोल जो अंदर था, इट वाज इन द सॉलिड फॉर्म, इट वाज कार्बोनियस कंपाउंड, वी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म एंड फ्रॉम अर्थ, इनसाइड द अर्थ इट वेंट इन द एटमॉस्फेयर, आउटसाइड द अर्थ, सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर. इट्स रोल कंप्लीटली चेंजेस. इनसाइड द अर्थ its role was positive, very positive, heat sink. Outside the earth it is negative, heat emitter, it trapping the heat, it is trapping the heat from the sun. The consequences global warming, many others I have listed. अब क्या है, what is the meaning of sustainable development? अभी तक जो हम लोगों का डेवलपमेंट था ये यहाँ इसमें था, ज्यादातर फंसा हुआ था. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नया डेवलपमेंट शुरू हुआ, when new development was started, it was from the industrial revolution, it started from Europe. So that kind of development I am talking about. डेवलपमेंट दो बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में. फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ है जब हम लोगों ने वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स. जो आपके काउस हैं वो डोमेस्टिकेटेड है. जो वाइल्ड काउ है, वाइल्ड काउ इज टोटली डिफरेंट. वाइल्ड डॉग इज भेड़िया, वोल्फ. वाइल्ड डॉग इज भेड़िया. तो वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट. that development was sustainable. That was good kind of development. That development was, we started agriculture, that development was sustainable. उससे नेचर को हार्म नहीं हुआ. लेकिन 200 लास्ट 200 इयर्स में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया, जस्ट टू फुलफिल द सोशल नीड, जस्ट टू फुलफिल द इकोनॉमिक नीड एंड लेफ्ट द एनवायरमेंटल कंसिडरेशन. So that was not sustainable at all. Just like use of coal, just like use of petroleum. So the development was not sustainable at all. और एक चीज और है, मैं why I am talking about energy, because everything energy, coal means energy, petroleum means energy. So energy is related with almost all, means 99% cause of pollution. जैसे आप प्लास्टिक यूज करते हो, इट्स एनर्जी, यू यूज लॉट ऑफ एनर्जी. प्लास्टिक तो और हार्मफुल है. क्यों हार्मफुल है? फर्स्ट in production of plastic we consume lot of energy is used. पॉलीमर बनता है, उसे प्लास्टिक बनता है, तो प्रोसेस इज एनर्जी, वेरी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस. उसके बाद उस प्लास्टिक को आप जब फेंक देते हो तो उसका फिर से एक बार एनर्जी आपने यूज किया, तो कोयला जलाया, तो वहां पे आपको ढेर सारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिया. उसके बाद उसको थ्रो कर दिया तो वो इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एट ऑल. इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल एट ऑल. अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जब थ्रो करते हैं प्लास्टिक को, अगर वह जमीन के लेयर के अंदर वह दब गया तो वहां पे जमीन सांस लेना बंद कर देता है.
वहां पे जमीन जो होता है, जो मिट्टी है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्ले का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम, जब क्ले का रेस्पिरेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर से, देन ओनली क्ले विल लाइव, देन ओनली क्ले विल फर्टाइल। अब जब आपने उसको वहां प्लास्टिक दबा दिया तो रेस्पिरेशन बंद हो गया, क्ले क्या हो गया, यूजलेस हो गया, वो जमीन क्या होगी, बेकार हो गई, इट इज नॉट फर्टाइल, मर गई, डेड हो गई। तो इट इज इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक। लेकिन वहीं पे पत्ती आपने दबा दिया था, सपोज लीव इज देयर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, इफ यू आर यूजिंग लीव, तो क्या होगा, वो दिस इज बायोडिग्रेडेबल, lot of bacteria are available, they will degrade within 1 month, not 1 month, within 10 days you will not found any leaf inside, it is bad. So because जो आपका प्लास्टिक है, it's not a natural material. तो दो प्लास्टिक यूज करने से क्या क्या हुआ, फर्स्ट ही यूज लॉट ऑफ कोल वेस्ट एनर्जी टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, वहां पे आपने एनवायरनमेंट को हार्म किया, फिर उसको प्लास्टिक वेफर्स खाया, कुरकुरे खाया और उसको फेंक दिया, तो जाके जमीन में दब गया, उसके बाद उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आया। तो ये चीज, दिस इज नॉट सस्टेनेबल, वेरी 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 डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। तो अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द मीनिंग इज दैट the development, the kind of development, kind of invention which should meet the social requirement, which should meet the environment, economic requirement, or which should also meet the environmental requirement, that is called sustainable development. Social नहीं होगा तो बेकार है, if it is catering only special class of people, only 1.1% people, that is useless, that such kind of invention is used. economic नहीं है तो चल ही नहीं पाएगा। अभी हम लोग we are working in the area biodegradable plastic also, but if cost will be very high, suppose cost is 1-2 times the normal plastic, तो हम लोग नहीं हो पाएगा, it's very difficult in present world, it's very difficult. No one is going to purchase your polythene bag if cost is 2 rupees and the normal plastic only 50 paise. तो economic consideration, economic को मीट करे, सोशल को मीट करे और इन्वायरमेंट को मीट करे, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये देखिए, अभी मैं जो बात कर रहा था, ग्रेटेस्ट चैलेंजेस अगेंस्ट मैनकाइंड, इन माय व्यू एनवायरमेंट एंड एनर्जी, बोथ आर एनालॉगस, बोथ आर रिलेटेड। एनर्जी कंजम्पशन मींस यू आर पोल्यूटिंग एनवायरमेंट, इफ यू आर एनर्जी कंजम्पशन हर जगह है, एनर्जी हर जगह, आप जो भी कर रहे हो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी, यू आर कंज्यूमिंग एनर्जी। आप फूड वेस्ट कर रहे हैं, तो फूड वेस्ट कर रहे हैं तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर यूज होता है, फर्टिलाइजर को बनाने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी कंजम्पशन इफ यू और एनवायरमेंट में देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो दीज टू आर द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस अगेंस्ट ह्यूमन काइंड। अगर इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो हो सकता है 100 साल में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, एग्जिस्टेंस ही हमारा डाउटफुल है। नाउ अनदर फ्यू चैलेंजेस आर देयर, डिजीज एंड ह्यूमन सफरिंग, वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, तो वी हैव, और ये भी कोरोना भी है, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स ह्यूमन क्रिएटेड, इट्स अ ह्यूमन क्रिएटेड वायरस। तो ये भी हम ही लोगों के कारण, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर this problem and many other kind of problem. Food and water security for all. अभी problem क्या है, the biggest challenge right now, I think many of you आपको पता होगा, हो सकता है, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है अभी वो 3 times of requirement है। अगर पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो हम जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, that is 3 times of requirement. If we need 1 kg, we are producing 3 kg. Now the problem is that even after that, a lot portion of people we don't get sufficient food. They are hungry. They are not getting 2 times food. इतना production के बाद, so there is a problem of distribution. There is some problem in the present world. Some problem in the, किसी बहुत ज़्यादा लोगों के पास है और लोगों के पास है ही नहीं। बहुत लोग अपने घर में फूड वेस्ट कर रहे हैं, आधा खाते हैं, आधा खराब करते हैं, और बहुत लोग पास खाने को नहीं है। एजुकेशन, इन सब को बहुत कुछ अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो एजुकेशन, वो डंडे से नहीं सॉल्व हो सकता है,
आप लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएगी, हो सकती है। तो दीज 5 आर द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस अगेंस्ट मैनकाइंड। आउट ऑफ दीज हम लोग इस पर बात करेंगे एज ए साइंटिस्ट, दिस इज आवर फील्ड। एनर्जी एंड एनवायरमेंट मीन्स वी हैव टू डेवलप द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वी हैव टू डेवलप द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना तेजी से एनर्जी मीन्स वेयर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग एनर्जी, वी आर गेटिंग एनर्जी बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। अभी तक जो हमारा एनर्जी था वह सब एक्सप्लॉइट किया हमने, कोयला निकाल लिया, ऑयल निकाल, उसका कुछ रोल था। तो वी आर मोस्टली वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। अभी हम थोड़े से अच्छे एनर्जी सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, लाइक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, एबंडेंट सोलर एनर्जी is available. So now we are trying to trap solar energy. That is good source of that is sustainable source of energy. लेकिन इससे पहले हम लोगों ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया, कोयला यूज किया, और कितना यूज किया, जस्ट यू सी द पैटर्न। 1820 the energy requirement was only 20 gigajoule per capita per year, 20 year, और now it's 80. तो 4 times हमारा just in 200 years our energy consumption increases 4 times. और ये 4 times जो है, you just for a minute, हेलो कौन, तो अभी बोलो मैं 3:30 बजे ना, 3:30 पे, अरे 3 लेक्चर चल रहा है ना, 3:30 पे तुमको बताए हैं, तो बोलो। नहीं हम आके देंगे, कल शाम को आएंगे, ठीक है, ठीक, हाँ हाँ शाम, हाँ हमको बोले थे। तो देखिए 1820 में only 20 unit you can say gigajoules, and now it is 80, now it is 80, 4 times। 4 times तब है जब हम लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग CFL, तो CFL सेम अमाउंट ऑफ लाइट यू आर गेटिंग at same amount of light, 10 watt CFL is equivalent to 100 watt previous bulb। तो 10 वाट 1/10 एनर्जी खर्च करके आप उतना ही लाइट मिल रहा है। और एनर्जी देखिए आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपको रियलाइज नहीं होगा। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय होम, अराउंड 25 years back I was in the 10th class, 25 years back, 93 I have done my 93 I was in 12th class, so 27 years back there was only one fan in my house, one fan, one table fan, और हम लोग छत पे सोते थे उसको लगा के। द वन फैन पावर रेटिंग इज ओनली यू कैन से 100 वाट। सबकी वही हाल है, सिमिलर स्टोरी, दे आर सिमिलर स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ वन फैन, देन आफ्टर 10 years there are many fan, all room there are ceiling fan in all rooms, after that coolers, after that AC. Now I have 3 AC in my room, my house. So 3 AC means एनर्जी कंजम्पशन कितना हो गया? फैन का 100 वाट है, ओनली 100 वाट। एसी का कितना होता है? 1600 वाट, 16 times more than one fan. Now I have 3 AC. I don't operate 3 AC obviously. So at least we are consuming 20 times more energy as compared to 25 years back. Not only AC, we have fridge, we have many energy devices in our home. We have fridge, we are consuming lot of water. पहले हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट कितना बहुत कम था। We used to take water from the well, 2-3 buckets was sufficient for one person. Now in one you are going for urination, आप बाथरूम में गए, एक बार फ्लश जलाया, you are wasting 16 लीटर ऑफ वाटर। तो 16 लीटर तो पहले सफिशिएंट था पूरे दिन के लिए, बट 16 लीटर ऑफ वाटर यू आर वेस्टिंग जस्ट फ्लशिंग द टॉयलेट, वन टाइम फ्लशिंग। तो वी आर वेस्टिंग लॉट ऑफ वाटर। तो ये तो हो गया 4 times बढ़ गया। यही प्रॉब्लम नहीं रुकी, आपका पॉपुलेशन भी बढ़ गया। हाउ मच इंक्रीज इन द पॉपुलेशन? ये देखिए यहाँ पे था, पॉपुलेशन कितना था यहाँ, 1 billion when around 200 years back, 1 billion, now it's 7 billion. So 27 into 4, 28 times energy requirement increases. The energy requirement increases 28 times. So energy requirements, I told you earlier, exploitation of the earth.
exploitation of the nature. We get the energy mostly in 200 years. In last 200 years, here we consume the energy on the cost of exploiting the nature. We have taken coal from, we have taken, और उसको जला जला के हमने क्या किया, उसको कर दिया, उसके इम्पैक्ट हम लोग झेल रहे हैं. तो आप देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कितना जनरेट कर रहे हैं, increasing with tremendous rate. 1960 just 88, now it is 258. So per capita waste generation around 4 times, 5 times. We are generating lot of waste. We are generating, increasing with tremendous. अभी एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है, वेस्ट ज्यादा घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है. बहुत काफी कुछ अवेयरनेस बढ़ने पे, टेक्नोलॉजी डेवलप होने पे भी ये चीजें थम नहीं रही हैं और बढ़ रही है. वाटर यूज देखिए, ये 100 साल पहले, ओनली 100 years back it was around 300 350, now it's 4500. It's a total withdrawal of water, total withdrawal of a lot of consumption, 10 times 11 times more water we are consuming. तो इससे क्या होगा, the consequences we are facing and going to face in the future. हम लोग कभी सोचते नहीं थे, आप भी नहीं सोचे होंगे, आपके जो जिनकी उम्र 50 साल है, कि आप कभी, हम लोग को कभी था नहीं कि हम लोग पानी खरीदेंगे. Never thought in our childhood period we will purchase the water. Now we are purchasing the air. तो टाइम, अभी एयर भी खरीदना, बहुत से एयर, बहुत इतने कुछ सिटीज इतने पोल्यूटेड हो रहे हैं कि रहने लायक नहीं. तो ये तो वी आर एक्सप्लॉइटिंग एनर्जी, वी आर एक्सप्लॉइटिंग वाटर, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. दैट्स व्हाई वी नीड द, अब हम सोचने लगे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम लोग पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए हुआ कि हमारे कल्चर में वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नेचर. जैसे एक कल्चर में देखोगे तो एक बरगद का पेड़ काटे पीपल का तो 100 पेड़ लगाना पड़ेगा. इसको जो ये गलत चीजों को कुछ धर्म से जोड़ दिया गया था, कुछ सिन. Cutting a bargad tree, because bargad is a very good source, a very large amount of oxygen. Bargad and people is only tree from which you get 24 hours you get the oxygen. That's a kind of tree, very large amount of oxygen you get. अब लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी तो लोग समझ नहीं पाते, कॉमन आदमी तो समझ नहीं पाता था कि क्योंकि वो फ्रूट नहीं देते, फल नहीं देते, तो उसको काट सकते थे, तो उसको धर्म से जोड़ दिए गए कि अगर बरगद काटोगे, पीपल काटोगे तो तुमको 100 पीपल, या तुम ये हो जाएगा, वो उसमें विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार, ये सब चीजें जोड़ी गई, इसीलिए जोड़ी गई. तो देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देयर वाज कॉन्सेप्ट फॉर रिस्पेक्टिंग द नेचर. बचपन में, माई होम इज इन वाराणसी, बचपन से मैं, तो जब बचपन में दादाजी अपने ग्रैंडफादर के साथ हम लोग गंगा जी जाते थे, वी यूज्ड टू टेक बाथ इन द रिवर गंगेज, एंड देन फर्स्ट वी हैव टू टेक द बाथ एट होम, उसके बाद जाना पड़ता था. दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वाज, वी आर मिसिंग, वी आर फॉरगेटिंग, वी आर गुड. जो जितने अच्छी प्रैक्टिसेस थे सब हम लोग खत्म हो गए. जस्ट वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली, वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर. We have to take the good culture from them, but mostly we are adopting the bad culture, bad habits. ये देखिए, तब भी अभी भी हम लोग ठीक सिचुएशन में है. दिस इज द पर हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज इन यूएसए, कनाडा. देयर सिचुएशन, हमारी इन्वायरमेंटल सिचुएशन बहुत अच्छी है. उनका साल, कनाडा में रहोगे साल भर आपको घर में को ठंडा करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो. You have to use the heaters throughout the even 9 months in a year. So they need lot of energy. वहाँ पे रहने लायक है नहीं, but we are fortunate, we have very good. तो हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा दिक्कत नहीं है. हमारे अब घर में, अभी देखो शहर में जो मकान बनते हैं, टोटल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, तो लॉट ऑफ हीटिंग इज देयर, ऑब्वियसली देन यू हैव टू यूज इट. लेकिन गाँव में मकान में जाओ, ओल्ड टेक्निक इज देयर. सिविल इंजीनियरिंग वाले कुछ जानते भी होंगे, वो जो उनका जो छत पड़ता था, टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाज देयर. अभी तो कंक्रीट का छत पड़ता है, उसमें बहुत चीजें पड़ती थी, उसमें काफी चीजें पड़ती थी छत डालने की, और दैट वाज वेरी कूल, दैट वाज सुटेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट. तो वी हैव टू स्टार्ट सच टाइप ऑफ रिसर्च. बहुत अच्छा था. गांव में जो मकान है, चले जाइए देखिए. अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ, इट्स अ वेरी, सीलिंग हाइट इज 20 feet. द ओल्ड चैम्बर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT BHU, or that chamber was built around 60-70 years back.
So very cold. We even I have AC in my chamber. We don't need. अगर बिजली नहीं है तो इसमें गर्मी नहीं लगती. Very airy way. तो अभी भी हम बहुत अच्छी सिचुएशन में. Our per capita energy consumption is very low as compared to the Western world, Western standard. We are in safe position. लेकिन यही हमको रुक जाना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा कम है लेकिन टोटल ज्यादा हो जाता है. बिकॉज आवर पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, सो टोटल इज नॉट वेरी लेस बट पर कैपिटा इज स्टिल वेरी लेस. इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर लिए तो हम लोग वी विल बी इन फ्यूचर वी विल इन द एडवांटेजियस पोजीशन. ये देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन के कुछ सीन है. कितना प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक जो आप देते हैं वह बहुत सी प्लास्टिक नदियों से समुद्र में चला जाता है. बहुत सा प्लास्टिक नदियों से कितना जाता है? 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन ओशन. 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक. यू कांट इमेजिन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यू आर यूजिंग. 8 मिलियन. उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? वो जाके पहला कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत से जो समुद्र के जानवर हैं, मछलियां हैं, ये देखिए कछुआ है इंटेंगल्ड इन द प्लास्टिक, वो मर जा रहा है. और वो क्या है? डीप सी में सेडिमेंट्स की तरह नीचे बैठ रहे हैं और वहां पे जो लाइफ है उसको इफेक्ट कर रहे हैं. तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर वी डोंट नो. अभी हम वो किसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए लेकिन कुछ हो सकते हैं. हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं है कि वो पता हो सके अभी हमसे उसको कुछ कर लें कि क्या होगा. तो ये अभी इम्पैक्ट है. वी डोंट नो द पॉसिबल इम्पैक्ट इन फ्यूचर, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस इन फ्यूचर. ये देखिए कितना बुरा हाल है. ओनली इन आफ्टर 19th century डेवलपमेंट ऑफ मशीन, यूज ऑफ मशीन, रैपिड यूज ऑफ मशीन, जो एक्सटेंशन रेट था एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स कितना तेजी से बढ़ा है. ऐसे बहुत से जानवर हैं, ऐसे बहुत सी चिड़िया हैं जो देखते देखते खत्म हो गई क्योंकि आप रोज देख रहे हैं, धीरे धीरे दिखना बंद हो गया, आप उसको केयर नहीं करते. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पैरो. Hardly we will find the sparrow in the cities. Very difficult. But it was not same. The condition was not same 20 years back, 25 years. There are a lot of sparrow. तो ये इतना तेजी से देख, कितना तेजी से, कितना रैपिड रेट आफ्टर 19th century. Extinction rate increases rapidly. ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है. अगर हम लोग सुधरे नहीं तो 2100 तक यहाँ तक टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. और ये क्या होगा आप सोच नहीं सकते. मेनी कोस्टल सिटी विल वाइप आउट. नो बॉम्बे, नो कैलकाटा, मेनी कोस्टल सिटीज तो खत्म हो जाएंगे. नो जापान, होल कंट्री विल. तो ये स्थिति होगी अगर हम लोग सुधरे नहीं, एज यूजुअल बिजनेस को करते रहे. कुछ कंट्रोल वर्ल्ड ने प्लान किया है, कुछ अर्थ समिट हुआ था तो उसमें कुछ हुआ है, उसको फॉलो करते हैं तब भी इतना तक जाएंगे. ये भी तो बहुत बड़ा है. इट्स नॉट टॉलरेबल. द इनॉर्मस इम्पैक्ट. इंडिया का तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा. इंडिया पूरा मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है, इतना बढ़ गया तो खत्म हो जाएगा. इंडिया गया, खत्म हो गया. लॉट ऑफ चैलेंज फॉर फूड एंड ये मतलब आपको दिख रहा है. इन सिटीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट वाटर. मतलब जो हैंडपंप है वो आपका हर साल लोग बोरिंग करते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं. 20 years back water was available at level of 100 feet. 15 years 150 feet. 10 years 200 feet. Now it is available at 350 feet. Such kind of problem we are facing, and still we are not alert. So this is our responsibility. This is a responsibility of the scientist, responsibility of the teacher to educate people, to send, to spread this message. और थोड़ा अच्छा करें और करें. हमको ये चाहिए, इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते. इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा. हमको प्लास्टिक का यूज खत्म करना पड़ेगा. हमको सोलर एनर्जी पे जाना पड़ेगा. हमको थर्मल पावर प्लांट धीरे धीरे बंद करने पड़ेंगे. हमको विंड एनर्जी पे जाना पड़ेगा. हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करना पड़ेगा. अपनी हैबिट्स में सुधार लाना. ये देखिए ये इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं. ये बच्चों के लिए सीड बनाई टू एजुकेट द चिल्ड्रंस, एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल नो. और बहुत से कॉमन एलिमेंट, द टाइगर,
प्रोबेबली आफ्टर 20 या 25 years देयर में भी, अगर ठीक हुए ये खत्म हो सकते हैं। लायंस सारे इंडेंजर्ड है, सारे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, जो वेरी कॉमन हमारे लिप्स पे है, हम जानते हैं, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और यही नहीं, इतने तो खत्म हो गए। कैप्सियन टाइगर, ये टाइगर जैसे आपके हैं उसी तरह कैप्सियन टाइगर पाया जाता था, 70s में खत्म हो गया। ये आपका तस्मेनियन टाइगर, ये भी बहुत खत्म हो गया। ये सारे बहुत कॉमन है, ये इतने ही नहीं खत्म हुए। दीज वर वेरी कॉमन एनिमल्स, these were very popular animals, और these animals are no more। अभी खत्म हो रहे थे तो 2010 में खत्म हो गए। वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दे आर नो मोर। तो ये स्थिति है। तो वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू स्प्रेड मैसेजेस, वी हैव टू एजुकेट पीपल। ऐसे यही नहीं हुआ, हम लोग इसको भी डैमेज नहीं किए। दीज आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ह्यूमन, एक ही स्पीसीज नहीं थी। होमोसेपियंस, नाउ देयर इज ओनली होमोसेपियंस, वी आर होमोसेपियंस। इसके अलावा ये थे, ये जो थे, ये अभी इनका जो एग्जिस्टेंस है, ये 25,000 बैक इनका एग्जिस्टेंस है। द एविडेंसेस आर देयर। लेकिन हम लोग वी आर स्लाइटली इंटेलिजेंट, जो भी रहा हो, ये सब खत्म हो गया। कुछ इन्वायरमेंटल रीजन से खत्म हुए, कुछ को हम लोगों ने खत्म कर दिया। जैसे जानवरों को खत्म कर रहे हैं, होमोसेपियंस क्या है हमारा, अभी कब हर जगह हम मतलब इनक्रोच कर रहे हैं। तो इसी तरह इनका ये सब का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। कुछ हमारे जीन में है, लेकिन ये सारे रह सकते थे, इसमें से कुछ रह सकते थे, कुछ का एग्जिस्टेंस अभी 20, 25, 30 years बैक। होमोसेपियंस एक बहुत अच्छी, होमो डिवेस होमोसेपियंस नॉवल भी आई है, उस पर आप पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। कि अब कुछ देयर आर सो मेनी नेगेटिव साइड्स, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं साइंस का यूज करके। जैसे ये नासा की पिक्चर है, इसमें नाइट्रोजन नॉक्स घटा है। ये 2005 की पिक्चर है और ये 2011 का पिक्चर है। देयर वाज लॉट ऑफ रिडक्शन इन नॉक्स ड्यू टू यूज ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, like electric vehicle. Electric utilities has shifted from coal to natural gas operation. Just from coal to natural gas. Natural gas, again we are exploiting nature, but natural gas is better source of energy as compared to coal from environment point of view. So there was lot of reduction in the NOx, nitrogen dioxide. ये देखिए, अभी एक चीज होता है, नेचर का सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। अभी भी अब ये आपको देखना है कि वेदर सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म, जिस दिन सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा तब खत्म हो गया, फिर इट्स नॉट, यू कांट रिवाइव, वी डोंट हैव पावर टू रिवाइव सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म। जैसे नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म क्या है, आप कोई भी वेस्ट डालते हो, आप पत्ती डालते हो, आप लकड़ी डालते हो, क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेल्फ क्लीनिंग, इट्स सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ नेचर। तो इसी तरह लॉकडाउन पीरियड में देखा गया, there was very good improvement in the quality of Ganga river just in 3 months। ये DO लेवल था, dissolved oxygen, लॉकडाउन में ये इतना बढ़ गया, around 20% enhancement in the DO level, around 30% reduction in the BOD। तो ये लॉकडाउन में just in 3 months lot of improvement was visible, observed। This means, the meaning is that the cleaning mechanism of nature is still effective। क्लीनिंग मैकेनिज्म इज स्टिल इफेक्टिव। हमको अभी क्या है, बस उसको छोड़ देना है, हमको ज्यादा डिटोरिएट नहीं करना है। अभी जैसे बाढ़ में क्या होता है, ड्रॉ मीन्स जो फ्लड होता है, फ्लड इज द नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिवर्स। फ्लड भी यूजलेस नहीं, आपको लगता होगा, आप तो लगता है फ्लड इसलिए यूजलेस लगता है क्योंकि आप जो गंगा बेसिन में लोगों ने मकान बना लिया, जहाँ फ्लड वाला जगह था वहां में मकान बना लिया, तो आपको दिक्कत होती है। वह तो गंगा का बेसिन है, वो फ्लड के लिए है, वो छोड़िए उसको। और वह फ्लड जो होता है, दिस इज सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म। फ्लड के समय गंगा का पानी एज गुड एट इट वाज 500 years बैक। इट वाज 500 years बैक एज अ गुड DO, गुड, ऑल पैरामीटर्स आर एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास पानी हो जाता है। सेल तो वो है अभी, वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर तो खत्म। फिर तो हर साल गंगा साफ हो जाती है, हर साल बाढ़ में गंगा के सारी नदियों की सफाई हो जाती है।
उनका पानी जैसे 500 साल पहले था वैसे हो जाता है, फिर हम लोग उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डोमेस्टिक पोल्यूशन, ये पोल्यूशन मिला के फिर 1 साल में फिर बर्बाद करते हैं, फिर नेचर साफ करती है, फिर बर्बाद करते हैं, फिर साफ करती है। तो बस अभी भी है, अभी ऐसा नहीं है सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म नेचर का खत्म हुआ है, ये फॉर्चुनेट सिचुएशन। अब ये सब का जो प्रॉब्लम है ना, वी हैव कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी, now we have consumption lot more and more consumption, ये करो वर्क करो, ऐसे chaotic society। हमारी नेचुरल नीड बहुत कम है, our natural need is very less, but we are chaos में हम लोग लगता है क्या कर रहे हैं, ढेर सारा काम, यहाँ जाना, मतलब कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी यही होता है। जैसे आप देखेंगे इफ यू ऑब्जर्व ट्राइबल सोसाइटीज इवन राइट नाउ एग्जिस्ट, वह हैं अभी बहुत से, अफ्रीका में है, इंडिया में भी है, उनका कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी नहीं है, वह जितना चाहिए उतना ही नेचर से लेते, एक दिन का खाना जुटाते हैं। दे आर नॉट, हम उनको प्रिमिटिव समझते हैं, बेकार, तो दे आर नॉट हार्मिंग नेचर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही नेचर से लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है, और वह फिर कलेक्ट नहीं करते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन। कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी का जो प्राइमरी सिम्टम होता है, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन, collection of money, collection of resources, collection of big house. One person is there, the house is 5,000 square feet house. एक आदमी चल रहा है और 8 सीटर गाड़ी चला रहा है, 7 सीट खाली है, consuming lot of petrol and polluting environment। उसको हम लोग अच्छा समझते हैं, साइकिल वाले को सोचते हैं तो बेकार है। साइकिल one of the finest example of science, one of the best technology। बाइसिकल इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजी, लेकिन हम लोग साइकिल तो चलाते हैं, वो साइकिल वाले को भी इंफीरियर समझते हैं। तो कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी हमारी है, हमारा माइंडसेट बदल गया है। अब ये है क्या, अब प्रॉब्लम ये है, कैन वी गो बैक, आर वी रेडी टू गो बैक फ्रॉम एसी टू फैन? लगता तो नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं, नॉट लुकिंग पॉसिबल। तो यही होता है नाउ, द either we have to use the good technology, we can solve the problem by using good technology, change in habit and good education. 3 things are required: using good technology, change in habit and good education। अब फॉर्चुनेटली अभी 10-20 साल से ये कॉन्सेप्ट आने लगा है, तो हो सकता है कि आपको अगर इसको हम लोग फॉलो करें तो हो सकता है विल सी द इम्प्रूवमेंट विल विजिबल विद इन 20 years, और विजिबल होने लगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, we are slowly moving from non-renewable source of energy to renewable source of energy। lot of solar based plant अभी क्या है, lot of development is taking in the area of solar energy अभी काफी सस्ता भी हो गया है, wind energy, microbial fuel cell, biomass based energy, so lot of technology development is taking place। तो that is अभी है, ये इंडिकेशन है कि हो सकता है कि हम लोग जो लॉस हो गया है उसको रिपेयर भी कर ले, यूजिंग द गुड साइंस। साइंस के दोनों यूज है, जैसे साइंस ने न्यूक्लियर प्लांट, अगर न्यूक्लियर प्लांट है तो उससे एनर्जी ले रहे हैं, बहुत अच्छा, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट इम्पैक्टिंग नेचर मच। न्यूक्लियर एनर्जी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल प्रोड्यूस वेरी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट इम्पैक्टिंग नेचर मच। लेकिन उसी का न्यूक्लियर बम आपने बना दिया तो इट्स न्यूक्लियर बम इज अ बैड यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटिवली गुड यूज ऑफ साइंस। तो साइंस टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, इसमें कैपेबिलिटी है, बट यू हैव टू डेवलप द गुड टेक्नोलॉजी, और उसको हम लोग को कॉशियस भी रहना पड़ेगा, हम लोग को अलर्ट भी रहना पड़ेगा, हम लोग को इम्पैक्ट को, पूरा इम्पैक्ट नहीं सोच सकते, लेकिन सोच के रखना पड़ेगा। अब ये देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है मैं जो पोटेंशियल टू सॉल्व द मैनकाइंड प्रॉब्लम। तो एक तो मैं इन माय व्यू एंड इवन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस हैज इनॉर्मस कैपेबिलिटी टू सॉल्व द मैनकाइंड प्रॉब्लम। For example, you are using mobile regularly, you are talking, no need to go from one place to another place, movement is less, so you are saving energy, you are saving petrol। बायोटेक्नोलॉजी, इनॉर्मस बायोटेक्नोलॉजी में इतना, मतलब आप सोच नहीं सकते,
क्योंकि हम अभी नेचर को, आई डोंट थिंक दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड नेचर 0.1%। नेचर को अभी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज नॉट 0.1%। 0.1% भी अभी हम लोग समझ नहीं पाए, एंड नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर मैं जैसा मैं कह रहा हूँ, इसको आपको इंटेलिजेंट वे में यूज करना, इसके बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसके बहुत हार्मफुल, मोबाइल से आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मोबाइल से आप पबजी भी खेल सकते हैं, मोबाइल से आप दिन भर डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। तो इसके बहुत हार्मफुल, बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मस टेक्नोलॉजी, नेचुरल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल इन नेचर, बहुत पावरफुल, दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल, लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर इसके पावर को। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं प्लस, तो इसको कैसे यूज करना है ये अब हम लोगों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली MFC, microbial fuel cell, the main topic, it's an example of the biotechnology, application of biotechnology to solve mankind problem. अब नेचर पावर मैं आपको बता दूं, बिकॉज नेचर वेरी पावरफुल। नेचर में जो अभी मशीन्स हम लोग, वी आर लाइक ए बायो मशीन्स, तो हमसे पावरफुल कोई डिवाइस बन नहीं पाया है। इनॉर्मस पावर हमारे बहुत, हम लोग अपनी पावर को जानते नहीं है। तो जो बायोलॉजी है, जो नेचर है, वो बहुत ही पावरफुल है। वी हैव ओनली 0.1, यू कैन से 0.001% अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, नेचुरल पावर। और लेकिन आप देख सकते हैं कैसे नेचर कैन क्रिएट ब्यूटीफुल लाइफ, बट वी कांट। हम लोग लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत ढेर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, बट वी आर अनेबल टू क्रिएट लाइफ इन द, और नेचर में लाइफ जो क्रिएट हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से क्रिएट हुआ है। उसका एक एग्जाम्पल अभी वायरस है। वायरस जो होता है क्या है, नॉन लिविंग क्रिएचर इन नॉर्मल कंडीशन। बॉडी के बाहर है तो इट्स अ नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर हो गया लिविंग, इट्स अ इन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो नेचर ने क्रिएट किया, नेचर में हर रेंज के क्रिएचर्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये है, वो है। नॉन लिविंग से लिविंग कन्वर्ट हुआ है नेचर में, तो इट्स द पावर ऑफ नेचर, हम नहीं कर सकते। नेचर क्या है, CO2 को फ्रूट्स में कन्वर्ट कर सकता है। वी कैन कन्वर्ट, नेचर कैन कन्वर्ट CO2 कार्बन इनटू गुड फ्रूट, वेस्ट इनटू मैन्योर, वी कांट। जो हमारा साइंस है, हमारा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये कि ऐसा हम कर सकते। अगर हमारे पास, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वी कांट मैन्युफैक्चर one compound, one catalyst, biocatalyst is needed to convert CO2 into biomass, that is known as chlorophyll. क्लोरोफिल क्या होता है, वो नेचर बनाता है, वो पेड़ों में रहता है, इट्स अ plant based enzyme. Chlorophyll basically plant based enzyme convert the CO2 into mango, convert the CO2 into banana. How beautiful the nature is. CO2 जो गैसियस है, ग्रीन हाउस गैस है, इसको आपको बनाना में बना, तो आप ढेर सारे पेड़ लगा देते, प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन आप ढेर सारे पेड़ लगा नहीं सकते, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन के से 3 गुना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब बैक हो नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैक बिकॉज लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, वे कहेंगे हम नहीं करेंगे, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम आ सकता। तो लेकिन नेचर के पास ये पावर है, CO2 को आम में बदल दिया। The mechanism is known as photosynthesis. वही कार्बन आपका फ्रूट में चेंज होता है, उसी से बनाना बनता है, उसी से गेहूं बनता है, वीट बनता है, राइस बनता है, वही है, वही सेम कार्बन। वी डोंट हैव सच टेक्नोलॉजी, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अब हम लोग उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने की, समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेचर में जेनेटिक कोडिंग है, हमारा कोड है ना, इस कंप्यूटर प्रोग्राम जानते हैं, जेनेटिक कोडिंग इज देयर, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कोड। लॉट ऑफ बिग टैंक थिंकर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक कोडिंग। वो जेनेटिक कोडिंग नहीं होता तो टिनी सीड कन्वर्टेड इनटू बिग साइज ट्री, सेम ट्री। ऐसा नहीं है कि आपने आम का पौधा लगाया तो पीपल हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। टिनी सीड कन्वर्ट इनटू बिग ट्री, how it's possible? Because there is coding. The coding is known as genetic coding. We are trying to understand that code. क्या है ये, अभी हमको समझ में नहीं है, unable to understand क्या कोड है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसको अगर सही तरीके से हम लोगों ने किया तो we can solve all mankind problem. गलत तरीके से किया तो हम खत्म हो जाएंगे, just like कोरोना वायरस, just like a कोरोना वायरस। तो
अब इसमें नेचर में जो होते हैं ये सब चीजें होती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेचर का, केमिकल है, एंजाइम्स, वेरी पावरफुल केमिकल. It's very, very difficult to synthesize the natural enzyme, not possible to synthesize the natural enzymes in the lab. It's not possible at all. Chlorophyll is a kind of enzyme. Insulin is a kind of enzyme. आपके बॉडी में ना इंसुलिन क्या करता है? There is role of insulin. Insulin convert the glucose, insulin convert the fat, insulin convert the carbohydrate into ATP. एनर्जी में कन्वर्ट करता है. वो नहीं हो तो आपको एनर्जी न मिले, आप चलेंगे कैसे? That's a very complex and very rare enzyme है ये enzyme है, ये प्रोटीन है. अब ये नेचर भी प्रोड्यूस कर सकता है. हम लोग इंसुलिन कहाँ, हम लोग प्रोड्यूस कहाँ करते हैं? हम लोग एनिमल इंसुलिन लेते हैं. इंसुलिन लैब में से नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन इन द लेबोरेटरी. तो अगेन वी आर यूजिंग टुवर्ड्स नेचर फॉर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव क्रिएटेड. इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी लुकिंग टुवर्ड्स नेचर. MFC is a kind of biotechnology. In MFC means we use the power of nature to solve the mankind problem. अब ये पावर ऑफ एंजाइम मैंने बताया बहुत पावरफुल होते हैं. आई हैव टोल्ड यू स्टोरी ऑफ इंसुलिन, क्लोरोफिल. तो एंजाइम इज वेरी पावरफुल. अब इसमें भी हम लोग बायोडिग्रेडेशन, बायोरिमेडिएशन, MFC में भी यूज द एंजाइम. We use the enzyme is produced by all kind of, जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट. पत्ती को ऑर्गेनिक, जो पत्ती जो डिग्रेड होती है, पत्ती है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो नेचर में डिग्रेड होती है, उसमें वो बैक्टीरियल प्रोसेस है. बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट द वेस्ट इनटू, मतलब वेस्ट है उसको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? दे प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम. द एंजाइम एक्ट एज बायोकैटलिस्ट. नॉर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, जब वो कैटलिटिक रिएक्शन हो जाता है, जब एंजाइम्स आ जाते हैं तो रिएक्शन होने लगता है. और वह आपका क्या हो गया? पत्ती वो CO2 में, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया. फिर से पेड़ ने उसको ले लिया, फिर से प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जस्ट लाइक मैन्योर. पत्ती गया, उसको वो क्या हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया. और मतलब पत्ती वो कन्वर्ट हो गया, उसको बैक्टीरिया ने ऐसे फूड सोर्स ले लिया, उसको मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, उसको पूरा साइकिल में. और फिर वो CO2 को प्लांट ने क्या किया? फूड में कन्वर्ट कर दिया. तो एंजाइम इज वेरी पावरफुल. एंजाइम, देयर इज रोल ऑफ एंजाइम, वेरी वेरी पावरफुल. अभी उसके पावर का हमको पता ही नहीं. उसका इतना पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते. कुछ एक्सपेरिमेंट अभी हुए हैं. मैं आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं कि उससे मतलब आपका एंजाइम दिमाग से, आपके माइंड से, आपके बिहेवियर से, आप उससे भी रिलेट होता है. अगर आप डर गए तो ऐसे एंजाइम्स पैदा हो सकते हैं, आपको किल कर सकते हैं. अगर आपको सांप का डर है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं आपको सुना ही देता हूँ. अभी हाल में 2-3 साल में एक जो कंपनी थी, वह द कंपनी वाज वर्किंग ऑन दिस, इसका जो सांप काटने से बचने के लिए ಆ ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಹಾಕಿ ರೂಮ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Sorry sir, that was a disturbance. अच्छा, ओके. सो तो वह सांप के जहर पे काम कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू डेवलप द वैक्सीन, काइंड ऑफ वैक्सीन. सो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को लिया जिसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ था. इट्स 5 years, अराउंड 3-4 years ओल्ड स्टोरी. तो उसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ था. उन्होंने आदमी को कहा कि हम आपको सांप के जहर से मारेंगे. उन्होंने माम्बा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक इन द African region. The poison supposed to be very dangerous and neurotoxic. The mamba poison is neurotoxic. तो उस आदमी को लिया उन्होंने उसको सांप का जहर दिया कि आपको सांप, आपका बॉडी यूज होगा वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए. वो तैयार हो गया आदमी. उसको उन्होंने वह जहर दिया, जो भी दिया, उन्होंने सांप की तरह उसको चुभाया और मर गया. अब मर गया तो उसको, अब क्या हुआ उसमें स्टोरी ये थी, दे वांट टू रिसर्च कि माइंड कैसे काम करता है और एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होते हैं. अब उसमें यह था कि उसको सांप का जहर दिया नहीं गया था, जस्ट उसको सांप की तरह पिन वगैरह चुभाया गया था. सांप का जो स्नेक का जो जैसे सांप काटते हैं उसी टाइप का उस एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था.
उसमें उसको जो उसकी डेथ हुई थी पूरा मांबा के जहर के कारण, वही सारी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो सारी चीजें वही मिली उसको। न्यूरोटॉक्सिन थे उसके बॉडी में, न्यूरोटॉक्सिन से जो जैसे लोग मरते हैं उसी तरह हुआ, सब कुछ वही हुआ। तो हाउ पावरफुल द एंजाइम्स आर। हमारा माइंड सिस्टम, हमारा दिमाग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, हमारा मतलब आप सोच सकते हो कि हाउ पावरफुल वी आर, हाउ पावरफुल द बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर, हाउ पावरफुल द वायरस। वायरस इज द सबसे छोटा क्रिएचर है, इट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाउ पावरफुल द कोरोना वायरस इज। तो ये आप सोच सकते हो कि बायो जो है, बायोटेक्नोलॉजी है, हाउ पावरफुल द बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी क्विकली यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। बट अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, थोड़ा सा भी रूट चेंज हुआ, गलत रूट लिए, तो खत्म भी हो, सब कुछ खत्म भी हो सकता है। वो प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। अब मैं क्विकली आई विल कवर माइक्रो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ टाइम टू द माइक्रोबियल फ्यूल सेल, a device in which organic waste can be converted into energy by a natural process. It's an enzymatic process, it's a bacterial process. We convert the waste into energy. So waste management bhi hai, there is waste management, there is energy production. It's based on power of biology, power of nature. Green and clean process, there is no side effect. It's a green process. We are not, कोई ऐसा नहीं है कोयला जला रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग। It's because we have adapted it from the nature, and all natural processes are green process. They are green process, जो natural process और nature को impact नहीं करते। Waste minimization along with energy production. This is one of the most important advantage of microbial fuel cell. अभी देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वेरी सिंपल, बायोलॉजी पीपल इवन 10th क्लास जिसको, इसमें क्या होता है कि हम दो चैम्बर बनाते हैं और एक में एक को वन कंपार्टमेंट इज नोन एज एनोडिक कंपार्टमेंट एंड अनदर कंपार्टमेंट में नोन एज कैथोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, एनोरोबिक रिएक्शन होता है, एनोरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। इन एनोडिक कंपार्टमेंट there is anaerobic. Anaerobic means in absence of oxygen. In absence of oxygen, waste degrade. जब in absence of oxygen waste degrade होता है, degradation means oxidation. तो oxidation in absence of oxygen. It's a natural process. In many natural processes, this phenomena takes place. Degradation of waste, oxidation of waste in absence of oxygen. उसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज जनरेशन ऑफ H+ आयन। इसमें इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और H+ आयन प्रोड्यूस होता है। अब हम उसके साथ एक कैथोडिक कंपार्टमेंट देते हैं और यहाँ से इसको सर्किट से जोड़ देते हैं और एक कैथोडिक कंपार्टमेंट देते हैं। कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में उसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जाके क्या करता है, ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन आता है और इधर से H+ आयन आता है। अब और मैं एक फिगर दिखाऊंगा, ये दोनों रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाता है। H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। तो वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू H2O, waste is converted into H2O. You are getting electricity because there is flow of electron, you get electricity, and waste is also converted into. This is very beautiful example of natural technologies. It's already present in nature. You are getting water. इसको यहाँ पे और advantage है. This H+ ion converted into hydrogen. Hydrogen is also a good quality fuel. Hydrogen fuel cell. Hydrogen is good quality fuel. तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लॉट ऑफ एडवांटेजेस आर देयर। अब इसको और इससे समझ सकते हैं, ये आपका इट्स अ सिंपल माइक्रोबियल फ्यूल सेल। दिस इज एनोड, यहाँ पे हम लोग कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं। एनारोबिक रिएक्शन टेक प्लेस, एनारोबिक ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इन द एनारोबिक ऑक्सीडेशन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से फ्लो करता है और यहाँ पे हम लोग एक मेम्ब्रेन देते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज PEM, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। H+ क्या है, प्रोटॉन में। तो देयर इज सेपरेशन बिटवीन एनारोबिक एंड कैथोडिक, एनोडिक एंड कैथोडिक चैम्बर इज बाय ए PEM। जो एनोड और कैथोडिक, एनोडिक कैथोडिक चैम्बर को सेपरेट करते हैं PEM से।
तो anodic cathodic chamber are separated by PEM. PEM is proton exchange membrane. तो ये क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है तो H+ आयन इससे वो एक्सचेंज हो गया, इधर आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी है. कैथोडिक चैम्बर ऑक्सीजन इज ऑलरेडी देयर. दिस ऑक्सीजन यू कैन गेट फ्रॉम एयर आल्सो. एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो, एयर वाटर लेते हैं जो भी. अब यहाँ पे रिएक्शन हुआ, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2. दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी. अब ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है. रिएक्शन कैसे होता है? बिकॉज हियर वी यूज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. वी यूज द बैक्टीरिया, स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया टू गेट द गुड एफिशिएंसी. अब इसमें बैक्टीरिया जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम. ड्यू टू दैट एंजाइम दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. In absence of bacteria, this reaction is not possible. How the waste will convert into waste will degrade and release electron and H+? It's not possible. In normal condition, it's not possible. That bacteria is already present in nature because it's a natural process. So ये आपका this is the basic biofuel cell. This is the working principle of the, in the simplest language, this is the working principle of the microbial biofuel cell. Advantages: we can operate at ambient condition. आपको ambient condition पे operate होता है. Renewable source of energy, only you need waste. Waste generate करोगे आप. If used in wastewater treatment, आप इसमें क्या है, इसका advantage क्या है? Now the reactors in wastewater treatment plant, they have reactors. You have to treat the waste. The reactor can be converted into MFC. The reactor can be converted into MFC. The treatment will be there. Treatment तो अभी भी हो रहा है, उस समय भी होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगा. आपको ट्रीटमेंट भी होगा, एनर्जी भी मिलेगा. तो जो उसकी कॉस्ट है ट्रीटमेंट की वो खत्म हो जाएगी. बिकॉज यू आर गेटिंग एनर्जी along with waste management. You can get the sufficient good amount of energy. But lot of challenges are there. This is already in the research stage. This technology is not in the some commercial developments are there. But it is still in the research stage. Clean, sustainable energy can be produced at low cost. अब डिसएडवांटेज क्या है? MFC का जो पावर आउटपुट है काफी कम है. वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट इज ओके. In our lab we have degraded many toxic waste in the MFC, like dye. Dye is very toxic. Dye means color, very toxic. We have degraded many organic compound, many toxic, including insecticide, pesticide, very toxic compounds. Naturally, it is difficult to degrade, but we have degraded. We have selected good quality bacteria. We have isolated good quality bacteria from the nature, and we are able to degrade dye. We were able to degrade insecticide, pesticide, many other toxic organic waste. तो ये आपका थोड़ा ये अभी इस पर रिसर्च चल रहा है. Lot of research is going on to increase the power of MFC. To enhance the power of potential application, wastewater treatment plant, sewage treatment, hydrogen production. हाइड्रोजन भी मिल रहा है, प्रोड्यूस कर सकते हो. क्लीन वाटर भी ले सकते हो. आपका जो H2O मिल रहा है, इट्स cleanest water you are getting. You can get the hydrogen. So lot of scope are there, lot of potential are there in this technology. अब देखिए ये आपका और डिटेल पिक्चर. अब मैं इसका साइंस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ चैलेंज है. अब बूस्टिंग हाउ टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ MFC. परफॉर्मेंस इज स्टिल चैलेंजिंग. रिसर्च से कमर्शियल स्टेज जाने में आपको इसको इकोनॉमिक बनाना पड़ेगा. तो वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से द टेक्नोलॉजी इज इकोनॉमिक. यू कैन यूज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. It's giving very good efficiency. But from energy production point of view, still many challenges are there. The energy production is low, very low. So we have to increase the energy production. How we can increase the energy production? By selecting good microbes, engineered microbe. अब यही इंजीनियर्ड माइक्रोब का मतलब है कि आप DNA लेके कुछ बढ़िया माइक्रोब लैब में सिंथेसाइज करो, लेकिन फिर वहाँ प्रॉब्लम है. वहाँ पे we must be very careful. We must be very careful. अब दूसरा क्या है? सबस्ट्रेट कैसा यूज कर रहे हैं या सबस्ट्रेट को कुछ मॉडिफाई करें. सबस्ट्रेट हियर मींस वेस्ट. सबस्ट्रेट मींस वेस्ट. इन लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी वी कॉल्ड इट सबस्ट्रेट. जो उसमें यूज हो रहा है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं.
third one is that electron transfer. So we have to use the good electrode. We have to use how electron transfer takes place. Sometimes electron produced in the bulk, and it is unable to, from bulk, it is unable to transfer from bulk to the anode. This is anode. And if it is unable to transfer from bulk to anode, then you will not get electricity. So that is another electron transfer mechanism. Type of microbial fuel, many type of microbial fuel cells are there. Some microbial fuel cell are two chamber, single chamber, many. तो उसमें एक और है कि जैसे आप माइक्रोबियल फ्यूल सेल में इसमें सॉलिड सब्सटेंट भी यूज कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट भी यूज कर सकते हो. अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने लैब में कि छोटे छोटे माइक्रोबियल फ्यूल से बनाएं, और क्योंकि उसका एनर्जी आउटपुट कम है, पावर आउटपुट कम है, तो वी कैन कनेक्ट देम इन सीरीज टू गेट द सफिशिएंट पावर. वेरी स्मॉल माइक्रोबियल फ्यूल सेल, से 1 by 1 centimeter. The whole big reactor can be converted into a small microbial fuel cell, and they may be connected into series to get the sufficient power out. So that kind of research is going on, not only in my lab, in other part of world also. They are trying to increase the energy efficiency of MFCs. That is the challenge. That is challenge from research point of view. From waste management point of view, it's a very good technology. Anaerobic degradation is very good, better than aerobic degradation. अब इसके अलावा क्या है, एक पीएम भी चैलेंज है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. अगर प्रोटॉन अगर ये एक्सचेंज नहीं हुआ, H+ आयन इधर रुक गया, तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन हो जाएगा. द कंडीशन विल बी एसिडिक इन द एनोडिक चैम्बर, एंड इफ एसिडिटी विल इंक्रीज, द pH will decrease, the bacteria may kill, the population of bacteria may reduce. So we have to use the good proton exchange membrane. That is a challenge, cost effective proton exchange membrane. Material of anode and cathode, electrode material and geometries, these are also very important factors. We have to use cost effective materials. Then optimization of cathode catalyst. Sometimes we use cathode catalyst. We insert a layer of catalyst on the cathode surface. We paint the layer of catalyst. So that optimization, selection of good catalyst is there. And most important thing is the optimization of operational parameters. Electrode potential, substrate concentration, these are all very important. How to run the MFC in the most optimum condition. What should be the proper temperature? What should be the proper pH? So all this, so we are doing, a lot of people, lot of people are doing research in all areas or one of the areas. They are trying to select the good bacteria from nature. They are trying to engineer the bacteria from DNA modification technique. They are trying to develop the good reactor. तो ये multidisciplinary field है, single discipline के बस की बात नहीं है. यहाँ पे बायोलॉजिस्ट चाहिए, यहाँ पे केमिकल इंजीनियर चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड हो गया, बहुत लोग चाहिए इसमें. अब ये देखिए इलेक्ट्रोड मटेरियल के बारे में मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये सब गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सम ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोड. So we are trying to select out of available material, we are trying to select the best material for electrode, including cost effectivity should also be there. Cost is the ultimate thing. Costly होगा तो कोई लेगा नहीं, आपको सस्ता करना ही करना पड़ेगा. आपको जो अभी टेक्नोलॉजी है उनके पैरेलल लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, उससे अच्छा करना पड़ेगा. जैसे आप किसी उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गए, बोले MFC लगा लो, तो कहेंगे मेरा तो चल ही रहा है, इसका एडवांटेज क्या है. तो आप कहेंगे कि भाई एडवांटेज ये है कि आपका वेस्ट मैनेज तो ये करेगा, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा. तो बोलेंगे कितना मिलेगा. आपने कहा कि एटलीस्ट 5 crore रुपीस यू कैन सेव, यू कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन होल प्लांट. तब हो सकता है वो जो रिएक्टर है, एनारोबिक चैम्बर है, उसको चेंज करने पे वो एग्री हो जाए. तो देन फॉर दैट वी नीड लॉट ऑफ रिसर्च. These are the electrode material, the people who are interested to work in this area. So these are carbon material, graphite, lot of material we have tested. Lot of people have used this kind of
all materials in their research work and tried and reported their efficacy. इसी तरह मेम्ब्रेन मैंने बताया PEM, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. अगेन अभी तक बहुत ये नेफियॉन यूज करते हैं हम लोग. इट्स एक्सेलेंट मटेरियल फॉर प्रोटॉन एक्सचेंज. इट्स एक्सेलेंट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. नेफियॉन इज अ कार्बन मटेरियल, वेरी वेरी गुड, लेकिन ये महंगा होता है, इसमें ये कॉस्टली है. So we are trying to develop cost-effective material. We are trying to develop using activated carbon. With help of material science people, we are trying to develop the PEM based on activated carbon. So such kind of research is going on. Microorganism biology का काम है, लेकिन हमारे as a chemical engineer, I have fully developed lab with all facility like DNA sequencing and then all biological characterization facilities available. तो स्टार्टिंग फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगी? जहाँ एनारोबिक कंडीशन, जहाँ एनारोबिक कंडीशन है वहां से आपने लिया बैक्टीरिया, उसमें बढ़िया बैक्टीरिया को छाटा. द बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैसी चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे. बैक्टीरिया कैसी चाहिए? ऐसी बैक्टीरिया है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी करा दे आराम से. इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करे वो इलेक्ट्रोड के पास करा दे. तो इस तरह की बैक्टीरिया आपको सेलेक्ट करना है नेचर से. या फिर इंजीनियर्ड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दैट एरिया इज वेरी वेरी रिस्की. दैट एरिया इज वेरी वेरी रिस्की. तो लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग इन दिस एरिया आल्सो. अब ये देखिए बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दिस इज द हार्ट ऑफ एमएफसी, बैक्टीरिया, बिकॉज दे, अगर बढ़िया बैक्टीरिया लेंगे तो एंजाइम होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा. अब इसमें 3 मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का. एक आपका इलेक्ट्रॉन ए में बल्क में हो गया, यहाँ ट्रांसफर होने में मुश्किल होता है. इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द ए, इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाया मीडिएटर. इसमें मीडिएटर देना पड़ता है, कुछ और केमिकल्स मिलाना पड़ता है, क्योंकि जो आपका सबस्ट्रेट है, जो मीडियम है, वो कंडक्टिव होना चाहिए. नहीं तो बल्क में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ तो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा. और ये सब कुछ बैक्टीरिया है जो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, बी एंड सी. इसमें आपको मीडिएटर्स. तो वी वांट सच काइंड ऑफ बैक्टीरिया adopting the mechanism B and C. Bacteria adopting the mechanism B and C. Direct transfer of electron to anode and through anode to the circuit. ये bacterial isolation है, biology people may aware. This is the way how we isolate the bacteria. First we take the bacteria from the source, then we go for serial dilution, then we form different colonies, then we check the efficacy of different colonies, then we select best one. Then we identify the bacteria using DNA sequencing technique. Very PCR, we do the PCR and we identify the bacteria, characterize the bacteria. ये सब performance parameter influence the performance, the performance of pH, very important, temperature, type of substrate, feed rate, concentration of pollutant, self resistance of MFC is challenge. जो MFC अभी हम लोग बना रहे हैं उसका सेल्फ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है. The inherent resistance is very high, so we get the low amount of current. So we have to decrease that. How to decrease that? If we are going for we are going for psi reduction in the MFC. Small MFC will have low resistance. So such kind of research is going on. The nutrient availability for bacteria. So a lot of research, all aspects. The research is going on. Yeah, different designs and जैसे ये आपका 2 chamber MFC is there. This is single chamber MFC. The cathode is air. Cathode from air. ये air जो है air environment है, तो यहाँ से cathode, ये cathode की तरह ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा. यहाँ रिएक्शन होकर यहाँ से वाटर मिलता है. यहाँ से आप बढ़िया पानी भी ले सकते हैं. जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पानी भी मिल जाएगा. हाइड्रोजन. तो आपका ये स्टैक्ड MFC है, कई MFC सीरीज में जोड़ सकते हैं, स्टैक टाइप के हैं. तो सच काइंड ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. डिजिटल फोटोग्राफ, रियल MFC, छोटे एग्जांपल हैं, लेकिन ये आपका कुछ इसको MFC से रन कर रहे हैं. ये MFC पावर्ड है, कुछ है, ये MFC पावर्ड है. रोबोट्स हैं ये सब, मोनो रोबोट्स. इको बोट इसको बोलते हैं. इको बोट क्या है? ये एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सस्टेनेबल हैं, अच्छे हैं. वी आर नॉट यूजिंग द पावर फ्रॉम कोल.
We are not using the power from cell. So we are using the power from nature, power of nature. That's why it's are called robot EcoBot. ये देखिए बायोफ्यूल सेल में ढेर सारा रिसर्च अभी बढ़ा है. ये आपके publication, enormous means there is rapid rate increase in the number of publications. 16, 17, 1000 publication is there. Research started from 2006. थोड़े बहुत पेपर इधर है, थोड़ा बहुत फाइंडिंग थी, but 2007 onwards there are a lot of work is going on. So 2007 around 150 publications, quality publication. I'm talking about SCI paper, good journal, Nature. So yeah, now 1000 papers per year are coming. A lot of research is going on. Citations, enormous increase in citation. ये सब मतलब इसका मतलब, इसका दिखाने का मतलब है lot of research is going on in the area of MFC. ये भी कुछ है, कुछ लोग प्लांट, जैसे ये आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, दिस इज 100 लीटर माइक्रोफ्यूल फ्यूल सेल. ये फ्लोट चार्ट है, इसको ऑपरेट हो रहा है. ये कंपनी स्विस कंपनी है, दे आर ऑपरेटिंग 100 लीटर माइक्रोफ्यूल फ्यूल सेल. तो फ्रॉम लैब स्केल टू you can say pilot plant scale, they are operating the MFCs. This is plant 64 unit microfuel fuel cell block for treating wastewater and generating electricity. This is one of the commercial applications. They are using small industrial MFC for generating or treating wastewater along with generation of electricity. ये भी इसी तरह है. ये आपका कंप्यूटर कंट्रोल प्लांट है. So they are controlling the whole operation of plant from one place, central place. Some research is going on in IIT BHU in my lab. These are lab scale MFC. We have operated, we have characterized, we have operated, we have evaluated the performance of MFC. We are getting the this is performance means electrical signal we are getting from MFC. This is a small MFC figure. ये है आपका. This MFC we have fabricated in lab itself, and MTech and PhD students are working. Few MTech and PhD students are working on these setups. There's some recent publication we have done. This publication we have used Nafion की जगह, Nafion नहीं, हमने Nafion की जगह we have used agar salt as a PEM. So agar salt is the cost-effective alternative of Nafion. And we got relatively good result, not at par with Nafion, but result was okay. But agar salt is a very cost effective PEM, alternative of PEM as compared to Nafion. इसमें हम लोगों ने ये किया, और हम लोगों ने we have isolated the bacteria, we have used the specific kind of bacteria, and we got very good amount of voltage from small MFC 0.57 watt. तो you can LED जला सकते हैं इससे. और उसके अलावा हम लोगों ने इसमें डाई को डिग्रेड किया. डाई इज वेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड. इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. डिग्रेडेशन ऑफ कलर इज स्टिल वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम. देयर इज नो फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी टू डिग्रेड कलर. इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. तो वी आर डिग्रेडिंग डाई along with production of a small amount. So this kind of research, this kind of setup will be useful for units, industrial units which are producing color waste. इसमें भी डाई को हम लोगों ने किया. Again we have used this bacteria. We have isolated this bacteria from wastewater treatment plant, and this bacteria shows very good result, very efficient for degrading color. And again we got very good result. Up to 200 ppm we have tested, and 90% removal we got. Up to 100 ppm, 90% color was removed within very small time, in 24 hours operation at TS7. So lot of research, similar kind of research is going on. So it is, you can say it's a futuristic technology. Some research is already going on in the lab, and we are expecting, we are trying. जैसे इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया दूसरी यूज कर रहे हैं. Again we have isolated from wastewater treatment plant, from anaerobic chamber of wastewater treatment plant. In this research we are trying to use a novel kind of PEM. जो हम लोग सोच रहे हैं
एक्टिवेटेड कार्बन से कॉस्ट इफेक्टिव पीएम अल्टरनेटिव ऑफ नेफियन. This research we are conducting in collaboration with material science people. तो वो लोग मटेरियल साइंटिस्ट है, वो फैब्रिकेट कर सकते हैं, वो पीएम को करेक्टराइज कर सकते हैं. ये सब रिसर्च है हम लोगों ने जो किया है. तो वी फाउंड दैट द ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू डिग्रेड टॉक्सिक वेस्ट. Still challenges are to increase the overall efficiency, energy efficiency of the MFC. These are some practical application, futuristic application of this MFCs. Like many challenges are there, but it's a green and clean technology. So a lot of research is going on all over world. So we are hopeful that within few years the working MFC will be possible, will be real. Working MFC means real type of MFC for waste management in the industry along with energy production. It will be real, it will be commercial. So overall conclusion is that overall MFC is a green technology having potential to solve energy crisis in a sustainable manner, along with waste management. So all plus points are there. Only thing is that we need a lot of research to increase the energy efficiency of MFC. So research is going on. Hopefully within 1 decade, within 5-6 years, we will have commercial MFC treating very toxic waste along with some amount of energy production. This is my lab, and all my students, MTech and PhD students, they are celebrating my birthday, COVID birthday. ये कुछ मैंने एक कविता लिखी थी. सो मैंने आपको, ये कोविड पे है, जो हम लोग अर्थ को, अपनी मदर अर्थ को जो मतलब डैमेज कर रहे हैं उस पर है कि इस पर जब जब मुझे सताओगे, मैं पढ़ देता हूँ. आई एम फिनिशिंग. जब जब मुझे सताओगे मैं कोरोना बनकर आऊंगी, तुम्हारे निकृष्ट कर्मों का तुमको याद दिलाऊंगी, चेताऊंगी सुधर जाओ, मुझ में ही तुम्हारा अस्तित्व है, समझो मेरी मर्जी को, इसमें ही तुम्हारा भविष्य है. मतलब अर्थ करिए, मेरी मर्जी को समझो, मुझे समझो. जो आप कर रहे हो ना, कोयला निकाल रहे हो, ये सब मत करो. देखो मैं सिसक रही, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी है. आई हैव रीजनरेशन कैपेसिटी, आई कैन रीजनरेट माई सेल्फ, आई हैव सेल्फ क्लीनिंग पावर. लेकिन तुम सुधर जाओ, मैं सिसक रहा हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ. जो दम्भ तुम्हारे अंदर है यही तुम्हारा धोखा है. हमारे होमोसेपियंस, हम लोग में बहुत दम है. वी कैन फाइट नेचर, हम ये कर सकते हैं, दुनिया, हम पूरी पृथ्वी को बदल सकते हैं. तो ये दम है, इतने पावरफुल हम हैं नहीं. एक बाढ़ से परेशान हो जाते हैं, एक अर्थक्वेक हो गया, छोटी छोटी चीजें जो नेचुरल हैं, वो हम उसको हम लोग टैकल नहीं कर सकते. कोरोना वायरस है, छोटा सा, स्मॉलेस्ट वायरस, तो वी आर अनेबल टू फाइट दैट. तो जो दम्भ तुम्हारे अंदर है यही तुम्हारा धोखा है. ये आंसू अगर नहीं रुके तो प्रलय बनकर बरसेंगे, एक नया कोरोना आएगा, सब जीवन को तरसेंगे. सो सेव मदर अर्थ, सेव योरसेल्फ. थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir, for a wonderful lecture and enlightening experience. Participants, if you have any questions, you can post in the chat box or you can come online. Devanshi ji, I have taken exactly 1.5 hours. Yes, sir. Sir, you are very punctual and accurate. नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल टॉक तो होता रहता है, मेनी यूट्यूब लेक्चर्स देयर, लेकिन जो जनरल टॉक है ना, लोगों को बताना, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, Yes, sir. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे, तो दिस इज आवर ड्यूटी.
अगर क्वेश्चन नहीं है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन बाय ईमेल, यू कैन शेयर माय ईमेल विद द पार्टिसिपेंट ना, Surely, later sir. on they can ask if anyone is interested to work in the area of MFC or biotechnology or bioremediation technique, तो they can ये सभी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं क्या? Yes, sir. Mostly civil engineers. तो आजकल इंटरडिसिप्लिनरी का जमाना चल रहा है, तो Yes, sir. दूसरे डिसिप्लिन की चीजें आपके मतलब जैसे मैं आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट मोस्टली माय रिसर्च एरिया इज इन द बायोटेक्नोलॉजी, so that is Yes, more sir. useful if civil engineer is working in the area इसमें कुछ कर जैसे civil engineer it's a sewage treatment plant, it's an area of civil engineer, so they can Yes, sir. think about the MFC, how to use the MFC on the place of anaerobic chambers, so Yes, sir. there is role of civil engineers. सर को एक बार 1 मिनट माइक ऑन कर। Sir, can you please switch on the camera? We cannot see you, sir. हाँ हाँ ये अपने आप ऑफ हो गया लग रहा है। Yes, sir. हो गया? एक No, मिनट sir, स्टॉप not. शेयरिंग करे तब। हाँ रुकिए जरा, इसको मुझे लग रहा है ना। हाँ अब होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो आ गया। हाँ now I'm Yes, sir. visible? हाँ ठीक है। Yes, sir. You are visible now. हाँ So, any of the participants, if you have any question, you can get in contact with sir. We will be sharing his email if you are interested into the particular research topic. So, I would like to thank Sir Singh sir for taking out his time from the busy schedule and increasing our knowledge towards the microbial fuel cell technology. And we hope that the microbial fuel cell technology gets developed and comes at a commercial scale so that the energy crisis can be solved in a sustainable manner. Thank you so much, sir, for accepting our request. थैंक यू देवांशी जी। आपका कॉलेज कहाँ है? ये IPS एकेडमी सर ये राजेंद्र नगर में है। कहाँ मतलब इंदौर कहाँ है? यस सर, इंदौर सर। इंदौर में है। कब कितना पुराना है? सर दिस इज अराउंड 25 years old. अच्छा काफी पुराना है। यस सर। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। और सारे केमिकल भी है वहाँ पे? केमिकल यस सर, केमिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, फायर टेक्नोलॉजी, all branches are here, sir. All branches are good. So it's a private, I think, deemed university. Yes, sir. The engineering college is autonomous, UGC autonomous, affiliated to RGPP. अच्छा राजीव गांधी। Yes, sir. Rajiv Gandhi से affiliated है. And we have a group of colleges जिसमें hotel management भी है, basic sciences भी है, law भी है. All the fields are together over here. How many students are there? So in civil engineering we have around 200 students, and various branches roughly around 200 per branch. CS has a more number of seats, but other than that all the branches are approximately 200. Or admission you take your IPS take your own test or it's through some national test like JEE? Yes sir, through JEE score then we admit the students. How much required for taking admission in civil engineering? JEE score? So there's no, that depends upon the results, sir. Nowadays तो 12th का भी result declare नहीं हुआ sir. अभी तो we have to CBSE का आ गया, तो और कुछ बोर्ड्स के आ गए। Slowly I think within 15 years all boards will be. But there was no exam this time, no sir. कोई exam नहीं लिया गया. Without exam, most of the students are very happy and few are very जिनकी तैयारी ज्यादातर की तैयारी होती नहीं है तो वो तो बहुत खुश है। They are lucky, they are happy that they got the certificate without attempting for it. But sir इसमें जो intelligent students रहते हैं उनका loss हो जाता है। हाँ पढ़ते नहीं अभी कोरोना में, तो it's a very difficult period. Yes sir. Teaching is very difficult. Teaching really challenging. It's a monologue ना, ऐसे जैसे अभी लेक्चर मतलब it's a very boring sometimes. Yes sir. Teaching में भी ना it's a monologue, बोल रहे हैं पता नहीं लोग नहीं सुन रहे हैं। That's true. Students are sleeping, कुछ तो मोबाइल हमको लगता है ऑन करके सो जाते हैं, पता नहीं क्या। उनको कई बार बुलाते हैं तो some of them respond but many don't respond. Yes. हमारे यहाँ JEE से एडमिशन होता है
लेकिन अब वो कुछ मतलब बहुत डिटोरिएट हो गया है ऑल ओवर, नॉट ओनली 12th क्लास। ट्रू सर, क्लास टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा टफ पेपर बना दो, अरे ये फेल हो गए थे, that's very true sir. So everywhere it's becoming challenging these days. चलिए, thanks to you. Thank you so much sir. Thank you. Uh, Thank you sir. So should I leave now? Yes sir. So we hope to see you in the next session also. That's in November. No problem. Another topic, biodegradation of waste, bioremediation of waste. So I'll deliver lecture. इसमें भी अभी बहुत सा पोर्शन बाकी था, तो मैं जल्दी कवर किया। जनरल में ही काफी समय नहीं, जनरल टॉक इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes sir, definitely. General talk you will find everywhere. Lot of YouTube lectures are there. ना? ठीक है, thank you very much. Once again, thank you very much. Thank you sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर आपका अनम्यूट नहीं है सर, वॉइस नहीं आ रही सर।